everybody, then next example. Just read the first few lines and tell me how many variables are we talking about. How many parameters are we talking about here? Read the first few lines. Char, very nice, very nice. And among these four parameters, and out of these four parameters, which is the primary parameter? So again, primary parameter is name. Again, the primary parameter is name. Okay. So what I did was I made a table like this, and I put in four headings: name, floor, profession, and brand of the mobile phone. Okay. And because मैं तो अभी स्क्रीन पे चलो हाईलाइट कर लेता हूँ, बट तुम लोग तो नहीं स्क्रीन पे हाईलाइट कर पाओगे. So maybe when you are solving it, what you can do is you can write down the list of the parameters. कि floor है 7. ठीक है. So then I need 7 professions also. So it is given to me that there are 3 teachers, there are 2 doctors, there is 1 engineer, and there is 1 scientist. And then there are 7 brands also. So brands are Lenovo, Apple, Sony, Samsung, Micromax, Xiaomi, and HTC. Okay. All right. And the main heading, as everybody is saying correctly, is name. So we'll fill in the names first. Okay. अब ध्यान से मेरे साथ काम करना. This question is a bit difficult than the previous one. Of course, ये भी आसान है, but then it's a bit difficult than the previous one. तो यहाँ थोड़ी extra efforts लगेंगे, थोड़ी extra मेहनत लगेगी. First point. C owns a Sony mobile. So for C, then I came to know that his brand is Sony, and therefore I've used up Sony. Neither C nor E is a scientist. So neither C is scientist nor E is a scientist. But then who is a scientist? We do not know so far. We have no idea so far. Third point. None of the teachers lives on an even numbered floor. Okay, now tell me first of all, is this condition related to any of the names? Is this condition related to any of the names? No. So can we use this condition in the table right now? Can we use this condition in the table right now? No. So isko bahar likho. If we cannot use any condition inside the table, then write down that condition outside the table, but do write it down. We have discussed it in the last class also कि logical reasoning के questions में making the summary of the conditions is very very important, because हमारी सारी conditions English में होती हैं और बहुत सारी conditions होती हैं तो बहुत बड़ा paragraph बन जाता है. So if we do not write down the summary, then it will be very difficult for us to read again and again and again for each and every question. But if we have summary of all those conditions in front of us, हमारा reading वाला काम बचेगा, हमारा reading करने में जो time लगेगा वो भी save होगा. So whatever we read, if it can be used in the table, put it inside the table. If not, then do write it outside the table. But make it a habit that in logical reasoning question, we always make a summary. चाहे कितनी भी irrelevant लग रही हो, चाहे कितनी भी unimportant लग रही हो, but उसको लिखें जरूर. कब कौन सी चीज काम आ जाएगी LR के questions में, you never know. So making a summary is a very very important thing LR के questions में. All right. So ज्ञान के बाद मुझे बताओ थर्ड कंडीशन से क्या पता चल रहा है? What actually can you derive from the third condition? What actually can you derive from the third condition? बोलो, या तो लिख दो या बोल दो चैट पे. तो 1, 3, 5 और 7 में से कोई टीचर्स. चांदनी आपने उल्टा पढ़ लिया है. नन ऑफ द टीचर्स बोला हुआ है इसने.
तो उसके कहने का मतलब है कि जो टीचर्स हैं वो ऑड फ्लोर पे रहेंगे, तो या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7। सो 1 3 5 7 पे टीचर्स रहेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट, F who lives on floor 6, तो F का फ्लोर मिल गया मुझे 6, तो मेरा 6 यूज हो गया। owns an Apple मोबाइल, तो इसका मुझे ब्रांड भी पता चल गया, तो मेरा एप्पल भी यूज हो गया। फिफ्थ पॉइंट, G द इंजीनियर, तो G का मुझे प्रोफेशन मिल गया इंजीनियर, तो मेरा इंजीनियर भी यूज हो गया। लिव्स ऑन अ फ्लोर, अब ध्यान से पढ़ना ये वाला पार्ट, lives on a floor immediately below the floor on which one of the teachers lives, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ऑड फ्लोर में। नो 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 नो, इवन फ्लोर फ्लोर पे। इवन सर है। जी लिव्स ऑन इवन फ्लोर। जी लिव्स ऑन इवन फ्लोर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताएं इवन फ्लोर मेरे पास बची कौन सी है? 2 and 4. 2 and 4, तो या तो जी का फ्लोर होगा 2 या जी का फ्लोर होगा 4, सो इट इज ईदर द सेकंड फ्लोर और द फोर्थ फ्लोर। सिक्स्थ, ए टीचर्स इन आरवी कॉलेज, सो ए का प्रोफेशन मिल गया मुझे टीचर, तो मेरा एक टीचर यूज हो गया। एंड लिव्स ऑन फ्लोर 5, तो मेरा फ्लोर 5 यूज हो गया। ओके, सेवेंथ पॉइंट, द इंजीनियर, सो बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इंजीनियर कौन है, सो वी नो कि ये किसके बारे में बात हो रही है। द इंजीनियर डजंट ओन एन एप्पल, अ माइक्रोमैक्स और अ सोनी। सो द टेबल टेल्स मी कि जो इंजीनियर है उसके पास सोनी और एप्पल तो वैसे ही नहीं हो सकते, बिकॉज ये कोई और ले जा चुका है। तो इंजीनियर के मतलब का सिर्फ ये है कि उसके पास माइक्रोमैक्स नहीं हो सकता, बट अगेन क्या होगा अभी पता नहीं चल रहा है। एट्थ पॉइंट, डी अ टीचर, सो डी का प्रोफेशन मिल गया टीचर, ओन्स अ लेनोवो मोबाइल, ब्रांड मिल गया, तो एक और टीचर यूज हो गया, एक ब्रांड यूज हो गया। नाइन्थ पॉइंट, अ डॉक्टर हु लिव्स ऑन द मिडिल फ्लोर ओन्स एन HTC मोबाइल। ओके, अब यहां रुक जाओ। टेल मी, क्या नाइन्थ कंडीशन किसी नेम को रिलेट कर रही है? क्या नाइन्थ कंडीशन किसी नेम को रिलेट कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसको बाहर लिखना पड़ेगा मुझे कि एक बंदा है जो डॉक्टर है, जो मिडिल फ्लोर पे रहता है यानी फोर्थ फ्लोर पे रहता है, और इसके पास HTC है, राइट। अब मुझे बताओ, ये 3 बंदों की इंफॉर्मेशन है या एक ही बंदे के 3 कंडीशंस हैं? ये एक ही बंदा है या 3 बंदे हैं? कैन वी से एक ही बंदा है ना? अब जरा एक बार टेबल पे नजर मारो सारे लोग, एक बार टेबल पे नजर मारो जरा। स्मृति, स्मृति, यस योर व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। थोड़ी देर में देखते हैं उसको, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, वेरी नाइस। टेबल की शक्ल देखो सारे लोग और बताओ ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसके पास हो सकता है? टेक अ लुक एट द टेबल एवरीवन, यूज सम रीजनिंग एंड टेल मी ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर वाला किसके पास हो सकता है? बी के पास। बट बी के पास क्यों? कैन वी से ई के पास भी हो सकता है? तो या तो ये बी होगा या तो ये ई होगा, या तो ये बी होगा या तो ये ई होगा, राइट। सबको ये कनेक्शन दिख रहा है? इन केस प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो जरा। हाँ जी आस्था। सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले तो बताओ ये 9th पॉइंट से हमने ये बनाया है वो क्लियर है? सर 9 से फर्स्ट वाली कंडीशन तो समझ में आ गई, बट बी और ई कैसे होगा ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मुझे एक बारी बारी से बताना, ठीक है। ए 5th फ्लोर पे रहता है, यस सर। तो ए तो नहीं हो सकता। यस सर। अच्छा, बी के तीनों स्पेस खाली हैं तो बी तो हो सकता है। यस सर। सी के पास सोनी है तो सी नहीं हो सकता। यस सर। डी भी नहीं हो सकता। ई की तीनों जगह खाली है, ई हो सकता है। यस सर, ठीक एफ है के आगे। पास एफ और जी नहीं हो सकते। ओके हाँ जी सर। चलो, ओके ओके ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट।
The scientist owns a Xiaomi mobile. So एक और कॉम्बिनेशन मुझे मिला कि साइंटिस्ट है जिसका फ्लोर तो नहीं पता लेकिन उसका मुझे ब्रांड पता चल गया है कि Xiaomi है। अब फिर से टेबल देख के बताओ ये कौन होगा, फिर से टेबल देख के बताओ ये कौन होगा। कैन वी से ये तो कंफर्म भी होगा, ये तो कंफर्म भी होगा, बी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर ये बी होगा तो कैन वी से पक्का फिर ऊपर वाला ई होगा, राइट। तो मुझे क्या पता चल गया, मैं लिख रहा हूं पूरा कि बी डॉक्टर है, तो डॉक्टर यूज हो गया हमारा। अच्छा, बी का 4th फ्लोर है तो 4th फ्लोर भी यूज हो गया हमारा। और बी के पास, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी 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 माय मिस्टेक, गलत लिख दिया मैंने, ये ई के पास लिखना था मुझे, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर 4th और HTC, और बी के पास लिखना है मुझे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट और Xiaomi, और Xiaomi। हाँ जी श्रुति, क्या कहना चाह रहे हैं श्रुति? श्रुति सर आवाज आ रही है? हाँ अब बिल्कुल बढ़िया आ रही है। हाँ जी बताओ। सर मुझे समझ नहीं आया कि बी साइंटिस्ट क्यों होना चाहिए। अच्छा मुझे एक और फिर बारी से, अभी जो मैं किसको समझाया था, मैंने आस्था को समझाया था, वही चीज दोबारा सुन लो। देखो ए टीचर है, हाँ। सी साइंटिस्ट हो नहीं सकता, नहीं। डी टीचर है, हाँ। ई साइंटिस्ट हो नहीं सकता, नहीं। है ना। एफ के पास एप्पल है, हाँ। और जी के पास इंजीनियर है। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके, ऑलराइट एवरीवन। सो 9th कंडीशन तक सारा सेट है। अब आते हैं 10th पे। द ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय द साइंटिस्ट। तो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर का मतलब नंबर 1 है, तो नंबर 1 साइंटिस्ट को दोगे, यानी कौन है साइंटिस्ट? बी, तो बी के पास फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम एक बात और डिड्यूस करना छोड़ गए हम कि जी के पास अब 4th नहीं हो सकता, तो जी के पास अब 2nd होगा। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द कंडीशंस, जस्ट लेट मी नो, हैंड रेस कर दो अगर इफ। हाँ जी अक्षत। सर अब एफ भी तो टीचर नहीं हो सकता ना। फिर से अक्षत, अक्षत आवाज क्लियर नहीं आ रही थी बेटा, दोबारा बोलना। सर अब एफ भी टीचर नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो इवन फ्लोर पे रहता है। हाँ जो वो, अच्छा अलग चीज बोल रहे हो, ठीक है। हाँ वो उस पर भी चलते हैं अभी थोड़ी देर में। मैं सिर्फ अभी कंडीशंस पूछ रहा हूँ। 1 to 10 में कोई डाउट है किसी को? 1 to 10 में कोई डाउट है किसी को? नहीं? अच्छा, तो अब देखो हमारे पास 2 प्रोफेशंस बचे हैं, एक टीचर और एक डॉक्टर। ओके, अब एफ क्योंकि इवन फ्लोर पे है तो इसका मतलब एफ टीचर नहीं हो सकता, तो एफ को डॉक्टर होना पड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी को टीचर होना पड़ेगा? एवरीबॉडी? अच्छा, 11th क्वेश्चन कहता है कि जो डी है lives on a floor that is above the floors on which the doctors live। अब इसका क्या मतलब लगा रहे हैं बताएं, इसका क्या मतलब लगा रहे हैं? डी 7th पे, डी 7th पे, क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर जो हैं वो 4 और 6 पर हैं और डी को इनसे भी ऊपर रहना है, तो पक्की बात है डी को 7 पे रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब C3 पे आ जाएगा। अब 2 ब्रांड बच गए हमारे पास, सैमसंग और माइक्रोमैक्स। जी के पास माइक्रोमैक्स नहीं है तो सैमसंग होगा, तो ए के पास माइक्रोमैक्स होगा। क्या सबको क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? तो आंसर्स निकाल लें जल्दी से। So which of the following brands is not owned by any of the teachers? कि टीचर्स के पास क्या नहीं है? देखो जरा टीचर के पास क्या नहीं है। लेनोवो है, सोनी है, माइक्रोमैक्स है, तो सैमसंग आंसर हो जाएगा। Who stays on floor 3 and which brand of mobile? फ्लोर 3 पे कौन है भाई? सी है और उसके पास सोनी है, सी और सोनी। Which of the following statements is correct? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, G lives on floor 2।
How many persons stay between the floors on which the engineer and the scientist stay? अब देखो इंजीनियर रहता है सेकंड फ्लोर पे और साइंटिस्ट रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, सो कैन वी से उनके बीच में कोई भी नहीं होगा, सो 0 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी?